विंध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से आरक्षित भारत, हिंद महासागर की उद्दाम तरंगों से पुलकित भारत, गांधी पटेल जैसे महारथियों से गौरवान्वित भारत, अनादि संस्कृति से सुसंस्कृत भारत। जैसा कि हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की ओर अग्रसर हैं, अमृत महोत्सव बहुक्षेत्रीय और सभी समावेशी जुड़ाव को जन आंदोलन में बदलने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। हमें एक साथ आकर स्वस्थ, युवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक एकीकृत मंच पर स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं श्री आलोक सक्सेना जी को, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल नैको, कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। स्वागत करते हैं श्री आलोक सक्सेना जी। Namaskar, good morning. Honorable Shri Mansukh Mandavia, Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Rajesh Bhushan, Secretary Health and Family Welfare, Srimati Aarti Ahuja, Additional Secretary Health, Dr. Naresh Goyal, Dr. Shobhini Rajan, Deputy Director General NACO, and participating youth. It is my privilege and honor to extend you all a warm welcome to this event of celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. On behalf of National AIDS Control Organization, Minister of Health and Family Welfare, first I would like to welcome Shri Mansukh Mandavia, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, for graciously accepting our invitation. I also wish to welcome and acknowledge the kind gesture of Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare. I want to extend my welcome to my secretary, Shri Rajesh Bhushan, and also my colleague, Srimati Aarti Ahuja, Additional Secretary Health. But in the end, I would also like to take this opportunity to appreciate the presence of almost 75,000 youth from across the country to celebrate 75 years of India's independence. Friends, I welcome you all for joining the event for launch of awareness campaigns around HIV/AIDS, tuberculosis, and blood donation. It feels different not to address a customary hall full of enthusiastic people, young people, simmering with passion and eagerness. But then the good side of it is that we are able to connect with more than around 75,000 youth amidst the COVID situation from every corner of the country. These young people are the foundation of our new India. Friends, New India at 75 is an inspirational strategy which aims to achieve a new India by successful only on account of mass movement, mass participation, which paved the way for our independence. The key to their success was people's belief in themselves and their mass participation. As a continued celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, we want to put forth that 3 awareness campaigns would be launched in 3 phases, covering topics of HIV/AIDS, tuberculosis, and blood donation. Engagement via these campaigns involving youth from across India will help in building trust and encourage them to seek advice and use health services. It establishes and maintains good relationships and is an active process that involves listening, questioning, understanding, and responding. I recommend you all to participate with full enthusiasm and eagerness and spread the word amongst your peers. It has come to a well-thought realization that in health particularly, and when we see the present COVID situation, no one is safe until each and everyone is safe. Thus, it gets imperative for each one of us to inculcate health-seeking behavior, to contribute its best possible manner, and in keeping the community safe. In the end, I would like to recommend all young minds who are present here and through you, your peers and friends, to embrace new technology, foster innovation, upskill, modernize, and contribute in making a new India which is healthier, moral, and safer. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संपूर्ण सुरक्षा की तरफ कदम बढ़ाएं. With these words, I welcome all. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार आज हम सभी के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किशोरों और युवाओं के बीच
उम्र के हिसाब से उचित जानकारी का प्रसार करने के लिए इन अभियानों का आयोजन स्कूलों और कॉलेजों द्वारा गठित रेड रिबन क्लब्स के द्वारा किया जाता है। आज हमारे बीच दो ऐसे युवा हैं जो कि रेड रिबन क्लब के मेंबर्स हैं। आइए जानते हैं कि कैसे वो इस मुहिम का हिस्सा बने और किस प्रकार बहुत कुछ नया सीखते हुए अपना योगदान इस पूरे कैंपेन को वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से सनिका। आइए उनकी वीडियो सुनते हैं। I'm very excited to be the part of the campaign that National AIDS Control Organization is going to launch to contribute in the development of New India at the rate 75 campaign of Government of India that will create awareness on HIV/AIDS, tuberculosis and promote blood donation. These campaigns are not only enhancing my knowledge but are also creating an awareness in me regarding the social issues. At last, I would like to say that an opportunity to do the social work through RRCs will surely develop a better India. Jai Hind. थैंक यू सनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से मयूख भट्टाचार्य। आइए इस वीडियो को देखते हैं। I'm very much excited to know that Government of India is going to launch a campaign named New India at the rate 75 to commemorate the 75 years of independence of India on this International Youth Day, and thankful to them to creating awareness amongst youth on HIV, blood donation and tuberculosis through their several campaigns, programs and other activities. Hope through this campaign, youth of India will come forward and create a new, vibrant, vigilant and healthy India. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मयूख। तो ये थी हमारे रेड रिबन क्लब के मेंबर्स की बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वॉइसेस और सनिका और मयूख ने हमसे इसके बारे में बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ श्रीमती आरती आहूजा जी को कि कृपया आप मंच पर आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्रीमती आरती आहूजा जी। धन्यवाद। Honorable Minister Health and Family Welfare, Honorable Minister of State Health and Family Welfare, Secretary Health and my colleagues and most of all भारत के विभिन्न भागों से हमारे साथ जुड़े हुए रेड रिबन क्लब के स्कूल और कॉलेज के बच्चों, आप जानते होंगे कि टीबी हमारे देश में बहुत प्रचलित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान दिया है कि हम 2025 तक अपने देश से टीबी का निराकरण करें, उसे खत्म कर दें। तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि टीबी कैसे होता है और कितने लोगों में है। आपका जो यूथ है 10 से 24 साल के का जो पीरियड है उसमें लगभग 26% जितना हमारा टीबी का बर्डन है उन लोगों में है। और जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, 15 से 45 वर्ष के 65% जो टीबी के केस होते हैं वो उस एज ग्रुप में होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस फैक्ट एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो that TB is an opportunistic infection. The TB bacteria is in all of us. At least 35 to 40% of us have the TB bacteria within us. But it becomes a disease. घातक तब हो जाता है जब हमारा malnutrition होता है या हमारी immunity कम हो जाती है। इसीलिए HIV जिनको होता है उनकी immunity इतनी कम हो जाती है कि अक्सर TB रोग हो जाता है। तो टीबी के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि टीबी के लिए सरकार पूरा फ्री ट्रीटमेंट देती है, फ्री टेस्टिंग है और फ्री उसके साथ साथ निक्षय पोषण योजना भी है। जो लोग ग्रसित हो जाते हैं उनको हर माह 500 रुपए दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको केवल 4 चीजें करने के लिए कहूंगी। First is join the TB forums that have been created in different gram panchayats, different blocks and different districts. Please join them and become active participants. The second is become TB champions. TB champion का मतलब क्या है? वो जो समझे इसके बारे में और जो बाहर जाके लोगों के बारे में जो भ्रांतियां हैं या जो स्टिग्मा है
उसको दूर करें। तो टीबी चैंपियन बनिए आप, आपका बहुत प्रभाव है अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों के बीच। तीसरी चीज है मेक टीबी फ्री कैंपस, मेक टीबी फ्री विलेज, मेक टीबी फ्री ग्राम पंचायत, मेक टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट। आप यदि जुड़ जाएंगे एनएसएस, एनवाईके या रेड रिबन क्लब या अन्य माध्यमों से यदि आप इसमें जुड़ जाएंगे तो निश्चय ही हम ये जो हमारा सपना है 2025 तक, वो निश्चय हम अचीव कर पाएंगे। The fourth point is give. What do you need to give? You need to give knowledge. You need to give information and you need to give hope to others. So for that, equip yourself with the basics of TB, with the basics of HIV, with the basics of blood donation, and bring them all together and disseminate. If you all come together, if you are with us on this 75th year of the anniversary of our country, then definitely we will achieve our goal. TB हारेगा और देश जीतेगा। धन्यवाद। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। थैंक यू मैम, आपने आज अपने सुविचार हमारे साथ बांटे, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक बहुत ही अच्छी खबर हम देना चाहते हैं कि इस समय हमारे साथ लगभग 75,000 बच्चे अपने स्कूल्स के क्लासरूम्स में बैठकर हमारे इस वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं। लगभग 75,000 बच्चे अपने स्कूल्स में हमें लाइव सुन पा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसी नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, जो मुश्किल समय में अपने संघर्ष से समाधान की कहानी अपनी जुबानी हमें सुनाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, खास तौर पे युवा, जो HIV, टीबी और थैलेसीमिया से ग्रसित हैं और किस प्रकार उन्हें सरकार द्वारा मदद मुहैया कराई जा रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले अपनी आप बीती हमारे साथ बांटने के लिए बिहार से हमारे साथ हैं पूजा कुमारी। आइए इनकी वीडियो देखते हैं। मैं न्यू इंडिया @75 के कैंपेन के मंच से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे जैसे सभी HIV पॉजिटिव को निःशुल्क दवा एवं जांच प्रदान की। मेरे साथ कभी भी मेरे कॉलेज या ART सेंटर में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। कोरोना के इस कठिन समय पे जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन था, तब भी मेरे घर में ART की दवा पहुंचाई गई और साथ ही सरकार द्वारा मुझे और मेरे जैसे सभी HIV पॉजिटिव को बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत 1500 रुपए दिए जाते हैं। आज मैं एक अच्छी बेटी, विद्यार्थी और रेड रिबन क्लब की सदस्य के तौर पे खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपने हमारे साथ अपनी आप बीती आज बांटी है। अब अगली आवाज जो हम सुनने वाले हैं वो दिल्ली से है और हमारे साथ हैं स्वाति टुटेजा। आइए इन्हें सुनते हैं। मैं स्वाति टुटेजा दिल्ली की रहने वाली एक थैलेसेमिक मेजर पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें थैलेसेमिक बच्चों को रेगुलर आफ्टर एवरी 15 to 20 डेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे हर महीने 3 यूनिट ब्लड और हर साल 36 to 40 यूनिट्स ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे लिए रक्त की आवश्यकता उतनी ही है जितनी कि एक आम व्यक्ति के लिए हवा, पानी और भोजन की है और सरकार द्वारा ये सुविधा हमें उपलब्ध कराई जाती है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि कृपया आगे आए और रक्तदान करें। रक्तदान महादान। धन्यवाद। थैंक यू स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, ये जो आखिरी आवाज इस सेगमेंट में है वो बिहार से शशि रंजन की है। आइए इन्हें सुनते हैं। बिहार से शशि रंजन। अक्टूबर 2019 में मुझे खांसी हुई। इस वक्त मैं दिल्ली में था। नवंबर में मैं अपने घर बिहार शरीफ चला आया। यहाँ मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद मेरी टाइफाइड की दवा चलाई गई। इसके बावजूद भी मैं क्योर नहीं हुआ। इसी दौरान मेरे कफ में ब्लड आने लगा और मेरे एक्सरे में मुझे
टीबी बताया गया। मैंने सरकारी अस्पताल से जाकर इलाज करवाया और मुझे मुफ्त टीबी और डीबीटी के माध्यम से 500 रुपये प्रति महीने भी मिले। मैं पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अक्टूबर 2020 में एक मीटिंग में टीबी के बारे में बहुत कुछ सीखा और एक टीबी चैंपियन बनने का मौका भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद शशि, आपने आज हमारे साथ अपनी आप बीती बांटी है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अब हम निवेदन करना चाहेंगे सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री राजेश भूषण जी से कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री राजेश भूषण जी। धन्यवाद और नमस्कार। भारत सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, माननीय मंत्री राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी वरीय पदाधिकारी और आज हमसे जुड़े हुए रेड रिबन क्लब के सभी सदस्य जो स्कूलों में हैं और कॉलेजों में हैं और आज के इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। आज जब हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस समय हमारे सभी मित्र जो हमसे जुड़े हैं, ये सब HIV के क्षेत्र में, टीबी के क्षेत्र में और स्वेच्छा से रक्तदान करने के क्षेत्र में जो अवेयरनेस चलाई जाएगी उसका एक सशक्त माध्यम बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारी युवा शक्ति है, ये हमारे भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। They can transform India's future if they have access to skills, health, decision making and real choices in life. सरकार के सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है कि युवा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो और युवा वर्ग विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सके। I want to reaffirm that one of the vital prerequisites for a productive young workforce is good health. हमारा देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे युवाओं की संख्या हमारी कुल जनसंख्या में बढ़ रही है, इसलिए जरूरी है कि ये जो यूथ है, ये जो यंग वर्कफोर्स है, ये प्रोडक्टिव हो और ये प्रोडक्टिव तभी होगी जब इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। Government, along with field experts, civil society and development partners are working to protect people, including youth, from disease and ensure a healthy lifestyle for all. Awareness generation in this context is fundamental because it helps people in making informed choices. Thus, today's event that we are all participating in is important in terms of dissemination of information about HIV, AIDS, tuberculosis, blood donation and other health related issues. Government of India has implemented and is implementing the Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram RKSK. इस मंत्रालय का एक बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से है। इसका उद्देश्य है टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ 25 करोड़ एडोलेसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। The key principles of this program are to inculcate and stimulate adolescent participation, leadership, equity and inclusion. The program has various components. ये जो कार्यक्रम है RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अनेक हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा है पीयर एजुकेटर प्रोग्राम, जिसमें कि बच्चों को या युवाओं को ही कैसे वो अन्य युवाओं को समझाएं उसकी प्रशिक्षण दी जाती है। दूसरा हिस्सा है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। साप्ताहिक रूप से आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए दवाओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, वो दूसरा हिस्सा है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम जो हमारी युवतियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो कैसे किया जाए। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, जो युवा हैं कम उम्र के, उनके फ्रेंडली क्लिनिक्स कैसे बनाए जाएं जिसमें उनकी समस्याओं को समझ के उसका निदान किया जा सके। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये आयुष्मान भारत के तहत प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि विद्यालय के स्तर पर स्वास्थ्य की जांच होती है
और कैसे संपूर्ण वेलनेस के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए उसकी बात होती है। In addition to this, the National AIDS Control Organization is implementing the Adolescence Education Program. And this program NACO has been implementing since 2005. और इस कार्यक्रम में NACO has got support of NCERT. And this Adolescence Education Program is being run in more than 50,000 schools across the country. Both NACO and NCERT together run this program with the objective to build life skills of young people, help adolescents cope with peer pressure, develop positive behavior, and improve awareness on health, including sexual health for preventing HIV infection. अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 12,500 से अधिक रेड रिबन क्लब हैं जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, देश भर में, और ये लोगों को जानकारी देते हैं, युवाओं को जानकारी देते हैं कि HIV से कैसे बचा जाए, HIV प्रभावित लोगों की केयर, उनका सपोर्ट, उनका ट्रीटमेंट, उनका इम्पैक्ट मिटिगेशन, स्टिग्मा रिडक्शन कैसे किया जाए और समाज में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए. At the end, I want to applaud the efforts undertaken by youth across India for participating with zeal and dedication in Azadi Ka Amrit Mahotsav. I urge you all to continue your participation with similar fervor in all three campaigns around HIV/AIDS, tuberculosis, and voluntary blood donation. Let's together make the dream of New India at 75 a success. Namaskar, Jai Hind. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार आज हम सभी के साथ बांटने के लिए. दोस्तों, नए भारत के विकास में योगदान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नैको के माध्यम से चरणबद्ध यानी फेज्ड मैनर से जागरूकता अभियान चलाएगा. और जैसा कि हम जानते हैं कि किशोरों और युवाओं के बीच उम्र के हिसाब से उचित जानकारी का प्रसार करने के लिए इन अभियानों का आयोजन स्कूलों और कॉलेजों द्वारा गठित रेड रिबन क्लब्स के द्वारा किया जाएगा. तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं, और आने वाली वीडियो इसका एक बहुत ही सुंदर माध्यम है. आइए जानते हैं इसके बारे में ज्यादा आने वाली वीडियो के माध्यम से. We are vibrant. We are enterprising. We are innovative. We are the Indian youth. Ministry of Health and Family Welfare through National AIDS Control Organization is instrumental in engaging and mobilizing youth for enhancing comprehensive knowledge on HIV and AIDS, tuberculosis, and promoting voluntary blood donation. The engagement is conceptualized through programs like Adolescence Education Program in schools, Red Ribbon Club Program in colleges, and Out-of-School Youth Program. I really can't wait to participate in the competition and learn a lot of new things about HIV, TB, and blood donation. These programs provide a platform for holistic development of youth with age-appropriate information, promoting health-seeking behaviors, safe practices, and overall wellness. We aspire. We triumph. We are the future of our country. We are the Indian youth. As we embark towards 75th anniversary of our independence, Amrit Mahotsav is an opportunity for multi-sectoral and all-inclusive engagement, transforming into Jana Andolan. Let us come together and bring more youth from schools, colleges and communities on a unified platform for healthy, young and Atmanirbhar Bharat. I feel immense pleasure in sending my happiness towards the launch of this program named as New India at 75 at national level. Imbued with the spirit of freedom struggle,
We build a new power, new nation, new India. थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री के साथ इंतजार था। एक ऐतिहासिक पल के हम सब लोग अब साक्षी होने वाले हैं। ये है पहले चरण का लॉन्च, पहले चरण का शुभ आरंभ, लॉन्च ऑफ फेज 1 HIV, TB एंड ब्लड डोनेशन कैंपेन। आज जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मनसुख मांडविया जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार से विनम्र हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों से बटन दबाकर इस कैंपेन का शुभारंभ करने की आप कृपया करें। सर, आपसे निवेदन है कि इस कैंपेन का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले चरण का शुभारंभ हो चुका है। बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी से कि कृपया आप मंच पे आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी। नमस्कार। ऑनरेबल मनसुख मांडविया जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री राजेश भूषण जी, सेक्रेटरी हेल्थ, श्रीमती आरती आहूजा जी, श्री आलोक सक्सेना जी, डॉक्टर नरेश गोयल जी, all officers, all my friends, all young participants, including Sanika, Mayuk, Pooja, Swati, Shashi, and all my dear friends. First of all, I extend my heartfelt congratulations to you all on this occasion of International Youth Day 2021. This year's theme, Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human, resonates well with the critical need of creating a healthy ecosystem for today's youth. This day, we all should reform to ourselves to ensure conducive and enabling environment for our youth to fulfill their aspirations. To reap the benefits of demographic dividend, India, under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, is marching to ensure that youths are equipped to seize opportunities to lead quality of life. I feel good health, good education, livelihood opportunities, and greater engagement and decision making are important pillars for development of our youths. Friends, youth involvement in healthy living programming is necessary to their development. Adolescent phase in youth is a wonderful journey, though marked by a myriad of emotions and doubts, and hence right kind of guidance and handholding becomes indispensable. It is today's youth who will carry the baton for tomorrow. Realization of New India at 75 is achievable with the efforts of our youths. They must be encouraged to realize their potential by equipping them with necessary skills. I will ensure tangible benefits and better ease of living. Friends, I would like to congratulate National AIDS Control Organization for being an epitome of an all-inclusive organization, placing the community well-being at the center. NACO's engagement with youths has been significant, covering out of school youths, school-going adolescents, and college-going youths. Taking this forward, Government of India also ensures an equitable participation
by all societal segments. This could be gauged in terms of attendance, retention, system efficiency, early childhood development, years of schooling, learning, focusing on adolescent health and mental health. Friends, we are all well aware about the challenges faced due to COVID, especially in the education sector. To overcome such challenges, Government of India has been expanding access to internet and other digital solutions for all to reduce the learning vulnerabilities and to ensure no one is deprived of the learning opportunities. Another milestone of Government of India has been the recent National Education Policy 2020, which envisions in making India a global knowledge superpower. The policy will help in the refining the cognitive development as well as social and the physical responsiveness of youth in India. Friends, our ancient Vedic knowledge offers a wealth of practical tools for living both the healthy and meaningful life. In addition, Sustainable Development Goal 3 aspires to ensure health and well-being for all, including a bold commitment to the end AIDS, tuberculosis, malaria, and other communicable diseases by 2030. It also aims to achieve universal health coverage and provide access to safe and effective medicines and vaccines for all. So, to achieve these goals, let us reaffirm our pride and join the Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and the potential to enable Honorable Prime Minister's vision of activating India 2.0 fueled by spirit of Atmanirbhar Bharat. I am happy to note that Ministry of Health and Family Welfare has brought together NACO, DGHS and NTAP for creating awareness about HIV, tuberculosis and blood donation among youths. Friends, I appeal to you all to come together and make this movement a big success. As the great leader, Mr. Nelson Mandela said once, I quote, "Sometimes it falls on a generation to be great. You can be that great generation. Let your greatness blossom." So let us rise, awake, and stop not till the goal is reached, as said by Swami Vivekananda. In this journey, Government of India will provide all kind of support, assistance for fulfilling the vision. With these words, I would like to thank you all for sparing your valuable time for this event. Jai Hind. Very rightly said, ma'am. Rise, awake, and stop not till the goal is achieved. Thank you, ma'am, for sharing your kind thoughts with us today. Thank you so much. दोस्तों, कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। अपने अनुभव और जन सेवा के कारण नई ऊंचाइयों पर पहुंचे माननीय श्री मनसुख जी निष्पक्ष भाव से अपनी सेवाएं चहुमुखी विकास एवं राष्ट्रहित के लिए प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री मनसुख मांडविया जी से, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, की कृपया आप अब अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक बार तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें श्री मनसुख मांडविया जी का। आज युवा दिन के अवसर पर अवेयरनेस कैंपेन ऑन HIV, TB एंड ब्लड डोनेशन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित
हमारी राज्य मंत्री डॉक्टर भारतीबेन पवार, विशेष उपस्थित सेक्रेटरी हेल्थ राजेश भूषण जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल नाको श्री आलोक सक्सेना जी, डॉक्टर नरेश गोयल जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हम जा रहे हैं और इस अवसर पर हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा अपने यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा युवा दिन को निमित्त करके HIV, TB दोनों डिसीज के संदर्भ में अवेयरनेस बढ़े, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़े और दूसरे लोगों का जीवन बचाने में हम उपयोगी हो। ये जिम्मा आज के दिन से या तो आज के दिन के अवसर पर मुझे लगता है कि कार्यक्रम के आयोजकों का मन में ये होगा कि हम ये युवाओं को दें, क्योंकि युवा में ताकत है जो सब कुछ कर सकते हैं। और युवाओं पर भरोसा सबसे पहले हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं की ताकत को पहचाना था, युवाओं की शक्ति पर भरोसा किया था और इसलिए ये समय के अनुसार जो आवश्यकता थी, गरीबी उन्मूलन और गरीब लोगों को मदद करना, गरीबों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा स्वामी विवेकानंद मानते थे और एक काम में युवा जुड़े। उस वक्त एक भी डिमांड थी, समाज में कई कुरीतियां थी, कई ट्रेडिशनल परंपरागत कुरीतियां में समाज पीड़ित थे। ऐसी स्थिति में ये स्थिति को कौन बदल पाएंगे? तब स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के सामने देखा था। उसके बाद 100 साल के बाद फिर से मोदी जी ने युवाओं की शक्ति पर भरोसा किया है, युवाओं की शक्ति को पहचानी है और इसलिए कई योजना बनी युवाओं के आधार पर। मोदी जी ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए डिसीजन लिया। मोदी जी ने हमारे युवाओं में स्किल पावर है उसको पहचाना और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शुरू की। मोदी जी ने हमारे युवाओं में खेल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप, ये दोनों हमारे जो संस्कार है उसको उजागर करने के लिए खेलो इंडिया लाया, युवाओं को प्रोत्साहित किया। युवाओं में जो अनगणित ताकत है, अनगणित क्षमता है, उसका उपयोग करके क्या हम HIV, TB के सामने नहीं लड़ सकते? आज देश में शायद 23 लाख से ज्यादा 23 लाख से एवं HIV पेशेंट है, 26 लाख से एवं TB के पेशेंट है। ये पेशेंट ज्यादातर युवा है और एक युवा दूसरे युवाओं को मदद कर सकते हैं क्या? मेरा मानना है कि जब युवा अपने मन में ठान लेता है तो वो परिस्थिति को बदल सकता है। सरकार की ओर से प्रयास करे, एनजीओ की ओर से प्रयास करे, एनजीओ में युवाओं जुड़े, एक सामूहिक प्रयास से मुझे लगता है कि ये महामारी के सामने हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और इसलिए युवा संगठन हो, युवा ग्रुप हो या तो इंडिविजुअल युवा हो, वो अपने हर काम को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ देंगे, तब मुझे लगता है कि मोदी जी का सभी अभियान को हम सक्सेस कर पाएंगे। जब आपके पड़ोस में किसी एड्स के कोई पेशेंट है या तो आपके पड़ोस में, आपके गांव में कोई TB पेशेंट है और ये TB पेशेंट को गांव के युवाओं को लगे कि मेरी जिम्मेवारी है मेरे गांव में और TB पेशेंट ना हो और जो TB पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट कराना, उसको हॉस्पिटल तक ले जाना, उसको गवर्नमेंट की ओर से जो सहाय है, जो योजना है, उसका लाभ दिलवाना कौन करेंगे?
सरकारी एम्प्लॉइज या तो सरकारी आशा बहन तो करेगी ही करेगी, लेकिन ये जब युवा उसके जिम्मे में लेंगे तब हम HIV और TB डिसीज के सामने लड़ पाएंगे। वैसे ही ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन करना बहुत आवश्यक है, दूसरे की जिंदगी बचाने का काम है। और ये काम में मैं देखता हूँ कई NGO अपने ओर से काम करते, कई युवा अपने ओर से काम करते, कई संगठन उसमें सतत काम किया करते, और इसलिए आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि किसी को ब्लड नहीं मिल सका इसलिए किसी का मृत्यु हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। डोनेशन के रूप में, डोनर के रूप में युवा डोनेशन कैंप लगा के एक कार्यक्रम करते रहे हैं। ब्लड बैंक के लिए ब्लड इकट्ठा करना, उसके लिए कैंप लगाना, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस करना। जब कैंप लगता है तो स्वाभाविक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस होती है। ऐसे कार्य में युवा जुड़े ही है। मुझे लगता है कि ये काम को और तेजी देते, जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आजादी का 75 साल पूरा हो रहा है और 74 साल पूरा हो, 75 साल में वो प्रवेश कर रहा है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, और इसलिए मोदी जी ने देश को आह्वान किया है कि क्या 75 साल के अवसर पर हम ये संकल्प करें कि जब देश की आजादी का 100 साल पूरा हो, ये 25 साल में हम क्या करेंगे, ये 25 साल का पाथ हम तय कर सके। जो एक बार हिंदुस्तान के युवा 25 साल का पाथ तय कर पाएंगे और वो सोचेंगे कि मैं 25 साल में देश के लिए ये कर दूंगा, वो सोचेंगे कि मैं ईमानदारी से देश के लिए काम करूंगा, वो सोचेंगे कि मेरे देश में कोई गरीब है उसकी मैं सेवा करूंगा। मेरे युवा सोचेंगे कि मेरे यहाँ कोई HIV TB के पेशेंट है, मैं पेशेंट को मदद करूंगा। दोस्तों, आवश्यक नहीं है कि केवल देश की बॉर्डर पर जाके देश की सुरक्षा करना वही राष्ट्रभक्ति कहलाती है। एक राष्ट्रभक्ति का विषय है, एक राष्ट्रभक्ति का स्वरूप है कि देश के युवा देश की मिलिट्री में जुड़े और देश के लिए कुछ कर मिटे। लेकिन देश के युवा कोई मिलिट्री में नहीं जा पाए। मुझे पता है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे मन में होता था कि मैं एयरफोर्स का पायलट बन जाऊं और एयरफोर्स का पायलट बन के देश की सेवा करूं। मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, मैं नहीं कर पाया। तब मैंने सोचा था कि क्या मैं और रास्ते से देश के लिए कुछ कर सकूं, और ये करने के लिए मैं पॉलिटिकल क्षेत्र में मुझे आने का अवसर मिला। तो पॉलिटिकल क्षेत्र के माध्यम से क्या मैं ईमानदारी से देश के गोल को अचीव करने के लिए काम करूं? क्या मैं अभी हेल्थ मिनिस्टर हूं तो मेरा ये लक्ष्य क्यों ना हो कि मेरे देश के एक नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा बने रहे। मोदी जी ने अच्छा सुझाव दिया है, या तो मोदी जी ने संकल्प रखा है, पहली बार हेल्थ को वेल्थ के साथ जोड़ा है। हेल्थ को वेल्थ के साथ जोड़ के, हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ के काम करके मैं मेरी प्रतिबद्धता यहां व्यक्त कर सकता हूं। आप युवा है, आप सामाजिक व्यवस्था में या तो आप आज पढ़ते हैं, कल पढ़ के कोई अफसर बनेंगे, कोई पॉलिटिशियन बनेंगे, कोई बिजनेसमैन बनेंगे। जहां भी जाओ वहां नेशन के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करना, वो मेरे दृष्टि से एक राष्ट्रभक्ति ही है, एक राष्ट्रभक्ति का स्वरूप है। मुझे लगता है कि हम इस दिशा में एकजुट होकर काम करें। युवा चैलेंज को स्वीकारते हैं, युवा चैलेंज को अचीव करते हैं, और युवा ही हमारे पास महाभारत से लेकर आज तक आपने देखा होगा, महाभारत के पृष्ठ भी आपने शायद कभी पढ़ा होगा, जब कर्ण अर्जुन के पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले थे और पांडव ग्रुप में पता चला कि ब्रह्मास्त्र से वार होगा और उसका सामना अर्जुन कैसे कर पाएंगे। और ये वक्त में भीम के पुत्र, जैसे उसको पुत्र का स्टेटस नहीं मिला था, हिडिंबा को भीम की पत्नी का स्टेटस नहीं मिला था, लेकिन उसका युवा पुत्र घटोत्कच ने ये बीड़ा अपने जिम्मे में लिया था और कहा था कि मैं लूंगा, और उसने अपने ब्रह्मास्त्र का सामना किया और स्वयं ने अपने बलिदान दिया था। और तब जाके ये महाभारत की लड़ाई का एक नया सोपान मिला था। किसने किया था? वो युवा घटोत्कच ने किया था। मेरे देश के एक युवा घटोत्कच है, मेरे देश के एक युवा स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं, और हम सब ये युवा नए भारत के निर्माण के लिए, मेरे देश के कोटि कोटि युवा
मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ में मिलकर काम करें तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि HIV और टीबी की लड़ाई को हम जीत पाएंगे और हम सक्सेस होंगे। एक राजेश रेड्डी की अच्छी कविता है, उन्होंने लिखा था, सफर में अब अजब तजर्बा निकल आया, लेकिन भटक गया तो नया रास्ता निकल आया। दोस्तों, हिंदुस्तान के युवाओं में ये ताकत है, जब युवा एक साथ में ठान लेते हैं तो वो जो पाथ पे चलता है वो रास्ता बन जाता है दोस्तों। और इसलिए मेरे आप सब युवाओं से अपील है कि हम सब लोग साथ में मिलके आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव जब देश मनाने जा रहा है, उस अवसर पर हम साथ में मिलकर संकल्प लें, हम साथ में मिलके दृढ़ निश्चयी बने। हम देश के नागरिकों की स्वास्थ्य की चिंता के लिए जो भी सरकार का कार्यक्रम चलता हो, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। हम दूसरे को उपकार में लगे और उपकार परम धर्म माने। दूसरे को मदद करना ये हमारी ट्रेडिशनल परंपरा है, उसको फॉलो करें और ब्लड डोनेशन जैसे अभियान के साथ भी विशेष तौर पे जुड़ के हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर संकल्पबद्ध बने, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज अपने सुविचार हम सभी के साथ साझा किए हैं। जैसा कि आपने कहा कि किसी के जीवन को बचाने का जिम्मा आज अगर हम ले लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अपने देश को अगर हम सुरक्षित रख पाएं तो ये राष्ट्र भक्ति है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फिर से आपको बताना चाहते हैं कि अपने अपने क्लासरूम्स में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में आज स्कूलों के बच्चे हमें लाइव सुन पा रहे हैं, हमें लाइव देख पा रहे हैं। हम अपनी टीम से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर कुछ तस्वीरें हम देख पाएं जिसमें ये बच्चे हमें इस लाइव प्रोग्राम के जरिए देख पा रहे हैं, आइए सभी की निगाहें जरा स्क्रीन की तरफ। ये फोटोग्राफ्स हमें बताती है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आज हजारों की तादाद में बच्चे यहां पर मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो हमारे पास निरंतर आती जा रही हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चे अपने अपने क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर के जरिए आज के इस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। इन सभी बच्चों को बाद में सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और ये प्रमाण होंगे कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने हैं और कुछ उन्होंने अच्छा सीखा है। आज बहुत ही सुंदर तस्वीरें हिंदुस्तान के कोने कोने से आज हमारे आंखों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। स्क्रीन पे तस्वीर नहीं आ रही है, स्क्रीन पे अब डूई हम नहीं देख पा रहे हैं। अनिल वाज राइट। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को। लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख तक बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, जो कि अपने अपने स्कूल्स में, अपने क्लासरूम्स में बैठकर अपने टीचर्स के साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को आज लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारी बातें सीखते हुए कुछ अपने जीवन में अगर वो सुधार कर पाए तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रोग्राम के लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ये एक बहुत ही सुंदर अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है धन्यवाद प्रस्ताव की और हम निवेदन करते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल नैको से डॉक्टर नरेश गोयल। सर कृपया आप आएं और धन्यवाद प्रस्ताव पेश करें। डॉक्टर नरेश। थैंक यू, धन्यवाद। रेस्पेक्टेड श्री मनसुख मंडविया जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, ऑनरेबल MOS, श्री राजेश भूषण जी, मैडम आरती आहूजा जी, श्री आलोक सक्सेना जी,
my colleagues Dr. Shobhani, Dr. Rajesh Rana, who has joined us virtually, and all colleagues of NACO, distinguished guests from Ministry of Health and Family Welfare and other ministries, project directors of SACS, young leaders from the states, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this important event of New India at 75. आजादी का अमृत महोत्सव की हम शुरुआत कर रहे हैं और सर ने अभी हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम को आज 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे पे लॉन्च किया जा रहा है। As you all know that in line with the Government of India's countrywide campaign, National AIDS Control Organization under the aegis of Ministry of Health and Family Welfare is launching this awareness campaign on HIV/AIDS, tuberculosis and promotion of voluntary blood donation in a phased manner by engaging youth from across the country who are involved in NACO's Adolescence Education Program, the Red Ribbon Clubs and Out of the School Youth Program. So I would like to bring to your attention that today we are joined over by more than 1 lakh from across the nation. In fact, we planned for 75,000, 75 के number के spirit में, but the response is overwhelming and I have been told that there are more than 1 lakh viewers who are viewing this program. So on this occasion, I wish to extend our hearty thanks to our Honorable Health and Family Welfare Minister, Shri Mansukh Mandaviya ji, for taking time out for joining us in the launch of event of this phase 1 awareness campaign. And I would like to say that, sir, your leadership and guidance for organizing this launch event aimed at youth of the country and thought-provoking address. Why I say thought-provoking? Because you exhorted regarding the limitless power of youth. उनमें असीम शक्ति है, असीम क्षमता है यूथ में। और दूसरा जो सर आपने राष्ट्रभक्ति की है जो अलग से डिफाइन किया सर यूथ के लिए, इट वाज रियली ग्रेट दैट हर काम में हम राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमें मिलिट्री में या आर्मी ज्वाइन करने में कहीं पर राष्ट्रभक्ति दिखानी है। तो ये सभी युवा जो सुन रहे हैं उनके लिए सर की ओर से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम हर जो काम करें उसको ईमानदारी से करेंगे तो उसमें राष्ट्रभक्ति हमारे को झलकेगी। थैंक यू सर फॉर दिस address. I would like to express my deepest gratitude to Honorable MOS Dr. Bharati Praveen Pawar ji for your presence in this event, and thank you madam for gracing today's event, for sharing your remarks. Your presence today will definitely encourage the youths for a better India, and I thank you specifically for reminding us the SDG 3 goal, that we will be able to achieve that full participation of our youth, that is the health and wellness, health and well-being of the society, of the nation and the world. I take this occasion to convey my deep regards and extend heartfelt thanks to Shri Rajesh Bhushan ji, Secretary Health and Family Welfare, sir, for your presence and thoughtful address, and elaborating, sir, various multiple programs that this ministry is doing for the youth. So thank you, sir, for elaborating all those programs, and our youth who are listening must have been more knowledgeable about these programs today by your address. I convey a sincere thanks and gratitude to Srimati Aarti Ahuja ji, Additional Secretary Health and former ASN DG NACO, whose guidance we keep on taking again and again, for her kind presence here and remarks on integration of HIV and TB through involvement of youth, and particularly her crisp messages regarding join forums, become champion, make TB knowledge, and therefore knowledge and hope, so that we shall overcome. Jeetega, हारेगा TB, जीतेगा भारत. Thank you, madam, for being here and addressing us. We are grateful for Dr. Sunil Kumar, DGHS Director, General Health Services, and all project directors of SACS, colleagues, and from the ministries and development partners who have been attending this event. I take this opportunity to thank
my colleague in the NACO, Shri Alok Saxena ji, Additional Secretary and DG NACO, for his continuous guidance, mentoring that he keeps on doing and keeps us motivated to organize such programs where we are able to create awareness and reach to the masses through such programs. Thank you, sir, for being here and continuously guiding us. I convey my special thanks to our special guests, that is SACS officers, teachers, coordinators from different schools and colleges, youth members of RRCs, school students, for their exceptional effort to make this event a grand success by participating in this event. I hereby acknowledge the support of USAID, PEPFAR, through Johns Hopkins University Accelerate program, who has been working behind the stage to make this program a great success. And last but not the least, my own enthusiastic NACO IC team under the guidance and leadership of Dr. Rajesh Rana to organize this event without any glitches. Thank you, NACO team. And sir, if you permit, 2 line दुष्यंत कुमार की आपने कविता पढ़ी सर, तो मैं भी छोटा सा पार्ट है। सिर्फ हंगामा, हमारा एक चैलेंज है यूथ को कि हमें सिर्फ चीजों को देखना नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है, ये सारी कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत मतलब थिंग्स शुड चेंज, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज अपने व्यूज शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है। फेज 1 कैंपेन के आरंभ की हम सभी को बधाई है, बधाई है, बधाई है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे सभी डिग्निटरीज का, सभी स्कूल्स का, सभी बच्चों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हमारे जितने भी दर्शक आज हमारे साथ, जो हजारों की तादाद में हमारे देश के कोने कोने से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और आइए, जैसा कि हमने बार बार सुना कि हारेगी बीमारी और जीतेगा देश, इसी बहुत ही सुंदर लाइन के साथ हम समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।